So, hello bachcho, good morning all. In our previous class, we have discussed about your different formulas related to different geometrical shapes. But in this class, we will discuss about the numbers, or you may say the application of those formulas. ठीक है बच्चों? So ये जो क्लास है, इसमें हम आपका जो formulas पढ़े थे, उनका जो applications है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. Okay, so we will start from exercise 11.1. Okay, and after that we will move forward. ठीक है, so यहाँ पे देखो आपका questions है. So first question: a square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same perimeter. Which field has the larger area? First of all, understand the question. Okay, so here in this diagram, one square is there and one rectangle is there, and the important thing here is that कि उन दोनों का जो पेरीमीटर है they are equal. That means आपका स्क्वायर का पेरीमीटर is equal to your rectangle का पेरीमीटर. Yes, देखो बोला है ना, square and a rectangle field with measurement as given in the figure have the same perimeter. That means ये स्क्वायर फील्ड और रेक्टेंगुलर फील्ड, उन दोनों का क्या है, आपका सेम पेरीमीटर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर को सेम है बोल के डील करते हैं. सो ये स्क्वायर है तो उसका जो हियर वी विल गेट द फोर साइड्स इक्वल 60 60 60 एंड 60. ये स्क्वायर है ना, तो क्या होगा उसका फोर साइड्स विल बी इक्वल. बट इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम, सो इन केस ऑफ ए रेक्टेंगल, व्हाट वी विल गेट, opposite sides are equal. So अगर ये 80 हुआ तो ऊपर का भी 80 होगा. And here we will get b for breadth, you may say. So according to the question, perimeter of the square is equal to perimeter of the rectangle. RECT, अच्छा spelling थोड़ा mistake है. Okay, RECTANGLE. Try to correct this one. Now we will get, so perimeter of a square, what is the formula? 4a. Perimeter of a rectangle, what is the formula? 2 into a plus b. So now we will put the values. ठीक है, सो रेक्टेंगल में आपका सॉरी, इन केस ऑफ स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइड? 60 मीटर. सो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 4 into 60 इज इक्वल टू, इन केस ऑफ योर रेक्टेंगल, यहाँ पे आपका a का वैल्यू और इनमें से लेंथ का वैल्यू कितना है आपका 80 मीटर्स है. यस, तो यहाँ पे आ गया 80 मीटर्स, और b को आप b ही छोड़ दो बिकॉज b का वैल्यू हमें पता नहीं है. सो after that this is your calculation, simple calculation. So 4 into 60 240, and here it is as it is, जैसा का वैसा ही है. और यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाने से क्या होगा बच्चों, देखो डिवाइडेड है. 240/2 is equal to 80 plus b. Here we go, 240/2 we will get 120, and here it is same it is. So यहाँ पे आपका 80 देखो प्लस है, यहाँ जंप करने से क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, we will get 80 minus, so 120 minus 80 will be equal to 40. So इसके बाद देखो finally what we got here the value of the breadth, that is 40 meters. That is how much? 40 meters. So अभी आगे का जो है हम उसका सॉल्व करेंगे. So what is asking, which field has the larger area? So now we will use the formula for area. So you can see that area of a square, the formula is a square, और you may say side into side का square, you may say a square. मतलब यहाँ पे a कौन होगा आपका 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर, तो 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू, लिसन बच्चों, जब आपको 60 का स्क्वायर बोले, आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, एक ट्रिक यूज कर सकते हो. देखो इसको आप ऐसा करो, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36. बिकॉज यहाँ पे 0 है और ऊपर 2 है, आप क्या करोगे, सिंपली 2 0 से दे दोगे. ठीक है, वेरी सिंपल. यस, यू विल गेट 3600 मीटर स्क्वायर. नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. यहाँ पर लेंथ है 80, ब्रेड्थ अभी अभी हमने रिसीव किया कितना, 40 बोल के हमने कैलकुलेट किया है. सो यहाँ पे क्या होगा देखो, आपका 80 इंटू 40 आपका है ना. इसको देखो आप इजीली बहुत सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे आप पहले काम करो, कितना जीरो से काउंट करो, 1 2, तो पहले लिखो आप 1 2 0 लिखो, देन 8 4 32, तो वो कितना मिलेगा, 3200 मीटर स्क्वायर मिलेगा.
ठीक है. So after that, from here we can clearly say that the square field has the larger area. So this is our conclusion. हमें finally पूछा था ना कि which field has the larger area. So we can write the square field has the square field has the larger area. So this is all about it, question number 1. Okay बच्चों, easy है, ठीक है. So next let's we go to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये काफी थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. यू कैन इमेजिन दिस वन आल्सो. ओके, सो लेट्स बिगिन. मिस्टर कौशिक, मिसेस कौशिक हैज अ प्लॉट with the measurement as shown in the figure. So Mrs. Kosik बोल के एक पर्सन है. So she got a plot. उनके पास क्या है, एक ज़मीन है. ज़मीन में क्या करेंगे, वो घर बनाएंगे. ओके, she wants to construct a house in the middle of the plot. So what Mr. Kosik first, what Mrs. Kosik decided, she decided to make a house in the middle of the plot. So उनका जो प्लॉट है ना, ये उनका प्लॉट है. देखो ये उनका जो प्लॉट है, उनका प्लॉट जो है ना वो कैसा प्लॉट है, एक स्क्वायर प्लॉट है. उस स्क्वायर प्लॉट का डायमेंशन कितना है, 25 मीटर्स है. उसका लेंथ कितना है, 25 मीटर्स है, साइड का लेंथ. ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस स्क्वायर प्लॉट के बीच में, पूरा बीच में क्या किया, एक घर बनाया. ठीक है, उस घर का देखो लेंथ कितना है, 20 मीटर्स है ना, और विड्थ कितना है, 15 मीटर्स. सो डेफिनेटली हाउस जो है ये कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर शेप में है. और आपका जो प्लॉट जो है वो कैसे शेप में है, आपका एक स्क्वायर शेप में है. कैसे, बिकॉज देखो यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, ये भी 25 है, ये भी 25 है, और बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो प्लॉट जो कैसा है, स्क्वायर प्लॉट है. ठीक है, नेक्स्ट, a garden is developed around the house. So after making the house, ठीक है, after making the house, यहाँ पे जो भी स्पेस बच गया, जो देखो आपका ब्लैक में जो शेड है ना, यहाँ पे जो भी स्पेस बच गया, वहाँ पे क्या हुआ है, ए गार्डन इज डेवलप्ड. ठीक है, सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स गार्डन बनाने के लिए ना 1 मीटर स्क्वायर को, ठीक है बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर को कितना रुपीस यूज होता है, आपका 55 रुपीज यूज होता है. तो पूरा का पूरा जो गार्डन बनाने के लिए जो ब्लैक में शेड है, कितना रुपीस आपको पे करना पड़ेगा. सो देखो बच्चों, यहाँ पे पहले आप समझो थोड़ा, ठीक है, क्या है और क्या था. सो यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका प्लॉट है. ठीक है बच्चों, एंड इन मिडिल ऑफ द प्लॉट क्या हुआ, आपका एक घर बनाया गया. ठीक है, दिस इज द हाउस. ओके, सो यहाँ पे देखो जो स्पेस अभी बच गया ना, जो स्पेस अभी यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या हुआ, आपका गार्डन बनाया. क्या बनाया बच्चों, गार्डन बनाया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गार्डन. तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ द गार्डन कैसे निकालोगे, सो दिस इज द एरिया ऑफ द प्लॉट. ठीक है, अगर आप क्या करोगे, दिस इज एरिया ऑफ द हाउस. इफ वी सब्ट्रैक्ट, if you subtract area of the house from area of the plot, then we will get the remaining area. जो इतना एरिया बच गया हमें मिल जाएगा ना. हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों, देखो एरिया ऑफ द प्लॉट से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द हाउस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, सो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट जो है मिल जाएगा, एंड रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज अ गार्डन. ठीक है, यस. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट कितना होगा, फॉर्मूला है ए स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर है ना. सो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द हाउस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बिकॉज दैट इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, आपका हाउस जो है कैसा शेप में है, एक रेक्टेंगल शेप में है ना, दैट्स व्हाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला आएगा. सो 20 इंटू 15, यू कैन सिंपली से दैट 300 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ द गार्डन आपको कैसे मिलेगा, आप क्या करोगे, एरिया ऑफ द प्लॉट माइनस एरिया ऑफ द हाउस. दिस इज योर एरिया ऑफ द व्हाट, एरिया ऑफ द गार्डन. ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपका 625 minus 300. So what will be the so what is the area of the garden, 325 meter square. What is the area of the garden, 325 meter square. ठीक है ना बच्चों, देखो इसके बाद हमें यूनिटरी मेथड जो आपने पढ़ा था ना, अब वो हमें यूज करना पड़ेगा. कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे. सो अब जब छोटे थे, क्लास 6 से 7 में होंगे, आपको पढ़ाया होगा ऐसा, अगर 1 चॉकलेट का कॉस्ट 10 रुपीज होता है, देन 2 चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा, 20. यस और नो,
10 + 10 20 हो गया ना। सिमिलरली मैंने बोला अगर आपको 20 चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, लेट मी शो यू। ओके, सो देखो बच्चों, 1 चॉकलेट को 10 रुपीज़ आता है, सो 20 को कितना आएगा, 20 इंटू 10, आपको आंसर कितना मिलेगा, 200। देखो 1 को होता है 10 रुपीज़, सो 20 को क्या होगा, 20 मल्टीप्लाइड होगा किससे, 10 से मल्टीप्लाइड होगा। सो दिस इज नोन एज योर यूनिटरी मेथड। यहाँ पर भी देखो जो सेम प्रिंसिपल यूज होगा। 1 मीटर स्क्वायर ऑफ गार्डन कॉस्ट 55 रुपीज़, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला है। देखो 55 पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपीज़, 55 रुपीज़। सो आपका गार्डन का एरिया कितना है, 325 मीटर स्क्वायर है। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट कितना होगा आपका, 325 इंटू 55। व्हाट विल बी द कॉस्ट, 325 इंटू 55। सो यू विल गेट 17,875 रुपीज़ आपको मिलेगा। सो टू डेवलप अ गार्डन यू हैव टू पे हाउ मच, 17,875 रुपीज़ यू हैव टू पे। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस, दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप 9 में जाओ, 10 में जाओ, आपको सेम शेप का क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of this garden. So बच्चों देखो, first of all understand what it is saying कि the shape of a garden, so we are dealing with a garden here, is a rectangle. अच्छा, give me a second, मैं आपको एक बड़ा डायग्राम दिखाता हूँ। ओके, सो दिस डायग्राम इज फॉर एनालिसिस पर्पस। ठीक है, यहाँ पे ना बच्चों देखो, डायग्राम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को जो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू एनालाइज द डायग्राम बिफोर डूइंग द नंबर। अगर आपने डायग्राम को एनालाइज सही नहीं किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एंड इन मेंसुरेशन डायग्राम इज कंपलसरी, डायग्राम का आपका मार्क्स भी होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट, so the shape of a garden is in rectangular in the middle. So we are dealing with a garden जिसका शेप कैसा है, आपका मिडिल में कैसा है बच्चों, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, यस, रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। दैट मीन्स यहाँ पे जो एंड है, यहाँ पे कैसा शेप है उसका, सेमी सर्कल। कैसा शेप है बच्चों, सेमी सर्कुलर शेप है। ठीक है, so what we have to find here, find the area. Okay, we have to find the area and the perimeter of the garden. We have to find the area and perimeter of the garden. So बच्चों देखो, यहाँ पे आपको एक चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि, so listen, look at here. So इस एंड पे एक सेमी सर्कल है, इस एंड पे एक सेमी सर्कल है। जब आप दोनों सेमी सर्कल को ज्वाइन कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यू विल गेट ए फुल सर्कल। ठीक है, देखो, दिस वन इज अ सेमी सर्कल, दिस वन इज अ सेमी सर्कल। जब आप क्या क्या करोगे, उन दोनों को अभी क्या करोगे, आप ज्वाइन कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट ए कंप्लीट सर्कल। सो यू कैन से दैट ये जो गार्डन जो है, यहाँ पे क्या है आपका, वन रेक्टेंगल इज देयर एंड वन सर्कल इज देयर, बिकॉज टू सेमी सर्कल है ना, टू सेमी सर्कल इज इक्वल टू वन सर्कल। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट यहाँ पे जो गार्डन है ये कैसे बना है आपका, वन रेक्टेंगल से बना है एंड वन सर्कल से बना है। आई थिंक आप समझ रहे हो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, डोंट वरी बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो गार्डन है, हाउ इट इज मेड ऑफ वन रेक्टेंगल। ठीक है, इट इज मेड ऑफ वन रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल। ओके, एंड टू सेमी सर्कल एट द एंड्स। सो यहाँ पे एक सेमी सर्कल है एंड यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज हियर, जब आप इन टू सेमी सर्कल को ना, व्हेन यू विल जस्ट टेक टू सेमी सर्कल नियर एंड नियर, देखो इन दो सेमी सर्कल को मैंने क्या किया, पास लेके जस्ट ज्वाइन कर दिया। सो व्हाट यू विल गेट ए कंप्लीट सर्कल। सो हियर एक्चुअली वी आर डीलिंग विद वन रेक्टेंगल एंड वन सर्कल। ठीक है, ओके, इतना आ गया। बस कीप दिस थिंग इन माइंड, ये चीज़ को आप दिमाग में रखो, आगे हम काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज देयर कि
Okay, हाँ. So here one rectangle is there. So here one rectangle is there. So rectangle का बच्चों क्या होता है आपका? Length and breadth. In the rectangle you will find two things, length and breadth. So you can simply see that यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसका ब्रेड्थ कितना है? 7 मीटर्स. देखो इस एंड से इस एंड तक कितना है आपका? 7 मीटर्स है ना. सो इसका ब्रेड्थ कितना होगा? 7 मीटर्स. यस और नो? यस. बट व्हाट अबाउट द लेंथ? यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ कितना होगा? आप अगर सोच रहे हो ना यहाँ पे इस रेक्टेंगल का लेंथ 20 मीटर्स होगा बोल के, देन यू आर रॉन्ग. बिकॉज गार्डन का लेंथ मतलब इस एंड से लेके इस एंड तक ये कितना है? दिस इज 20 मीटर्स. नॉट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 मीटर्स. सो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. हाउ यू हैव टू फाइंड दैट? देखो यहाँ से यहाँ कितना होता है? 7 मीटर्स. सो दिस इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्किल. सो इस सेमी सर्किल का आपका रेडियस कितना होगा? इफ द डायमीटर इज 7 देन द रेडियस इज 7/2. डायमीटर का हाफ होता है. सो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू हियर यू विल गेट हाउ मच? 7/2 और में से 3.5. सिमिलरली यहाँ पर भी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा आपका? 7/2 और मैं सिंपली से हाउ मच? 3.5. 7/2 को डेसिमल में कन्वर्ट किया मैंने, 3.5 मिलेगा. सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा आपको पता है? यू हैव टू डू व्हाट? 20. देखो टोटल कितना था? टोटल 20 था. यस और नो? टोटल 20 था ना. सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कैसे हुआ? लेफ्ट हैंड साइड से 3.5 माइनस हुआ और राइट हैंड साइड से कितना हुआ आपका? 3.5 माइनस हुआ. दैट मीन्स 3.5 माइनस 3.5. ओके. सो देखो इसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. तो देखो डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल कितना है? 7 मीटर. जो कि देखो मैंने बोला था आपको यहाँ पे डायमीटर कितना गिवन है? देखो डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, टॉप से लेके बॉटम में कितना है आपको? 7 मीटर्स गिवन है. सो व्हाट इज द रेडियस? यू विल फाइंड 7/2 और इनमें से सिंपली 3.5 मीटर. सो बच्चों देखो आपने रेडियस का जो आर का जो वैल्यू है, रेडियस का जो वैल्यू है, यू कैन यूज 7/2 एज वेल एज यू कैन यूज हाउ मच? 3.5 ऑल्सो यू कैन यूज. अप टू यू. ठीक है, आप कौन सा वैल्यू यूज करोगे, अप टू यू. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट. ठीक है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा आपका? आप क्या करोगे? 20 में से कितना माइनस करोगे? 3.5 एंड 3.5 you have to minus. ये वाला पार्ट क्या करोगे? 20 में से you have to subtract to get the length of the rectangle. Okay, here it is. So 20 minus 7 here it is because 3.5 दोनों का साइन सेम है, दोनों प्लस हो जाएगा और साइन देखो माइनस है. ओके, सो 17 मीटर्स. एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, इसका ब्रेड्थ कितना होगा? इसके साथ सेम होगा. सो यू कैन सिंपली से 7 मीटर्स. सो देखो अभी हमें जो है ना पूरा का पूरा सब कुछ मिल गया. सेमी सर्किल का क्या मिल गया? रेडियस मिल गया. आपका रेक्टेंगुलर पार्ट का लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों के दोनों मिल गया. ओके, सो नाउ वी कैन सिंपली गो फॉर द कैलकुलेशन. सो यहाँ पे देखो मैंने लिखा ये होगा 13, ये होगा 7 और आपका जो रेडियस जो है वो कितना होगा? यू में राइट 7/2 और यू में राइट 3.5. दोनों के दोनों सेम है, एक डेसिमल में है और एक फ्रैक्शन में है. मैं यहाँ पे देखो 3.5 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा आपका? 7/2 लिखूंगा. दोनों सेम है बच्चों. ठीक है, एक डेसिमल में है और दूसरा किस में है? फ्रैक्शन में है. ओके, सो नेक्स्ट पेज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. क्या होता है देखते हैं. ओके, द एरिया ऑफ द गार्डन. ओके, हमें क्या मांगा है देखो बच्चों क्वेश्चन में? वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गार्डन एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द एरिया ऑफ द गार्डन. ठीक है, सो एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट इनटू 2 इंटू एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट. बिकॉज देखो यहाँ पे हमारे पास कितना सेमी सर्कल है? 2 सेमी सर्कल है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है? क्या है आपका? देखो a इंटू बी और इनमें से लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और यहाँ पे क्या होगा आपका? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2. बिकॉज देखो बच्चों सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों आपका? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर. जब आपका क्या होगा? सेमी सर्कल हो जाएगा, दैट मीन्स सेमी सर्कल मतलब क्या हुआ? ये वाला पार्ट कंप्लीटली हाफ हो गया, तो आपने क्या किया? यहाँ पे बाय 2 कर दिया. देखो यहाँ पे आपने बाय 2 किया, या मगर यहाँ पे क्या होगा? 2 2 जो है क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली. हियर वी आर डीलिंग विथ वन रेक्टेंगल एंड वन सर्कल. देखो यहाँ पे जो है आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला है और ये क्या है आपका? एक एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है. ठीक है,
यहाँ पे एक्चुअली दो सेमी सर्किल हैं, दे आर कंबाइनिंग एंड मेकिंग वन सर्किल, ठीक है। सो यहाँ पे आपका वैल्यूज पुट हुआ 17 इंटू 1 91 आ गया। यहाँ पे पाई का वैल्यू है 22/7 और आर का वैल्यू कितना है आपका 3.5 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो सिंपल कैलकुलेशन चल रहा है आगे, ओके 91, ओके यहाँ पे देखो आपका 7 एंड आपका सो इन हियर इन दिस स्टेप 3.5 का होल स्क्वायर 12.25 आ गया, ओके। नाउ इन दिस स्टेप ये दोनों डिवाइड हो गए, ठीक है। 7 एंड 12.25 आपको मिल जाएगा कितना 1.75, 1.75 एंड आपका 22 दोनों ऐड हो गए, आपको कितना मिलेगा, ठीक है 38.5। so after adding this two 91 and 38.5 you will get 129.5. this is the area of the garden, this is the area of the garden. After that you have to find out the area of the perimeter of the, look at here हमें यहाँ पे क्या मांगा था, let me change the ink. We have to find the area, हमें देखो एरिया मिल गया, yes 129.5 meter square. Now you have to find out the perimeter of the garden, you have to find out the perimeter of the garden, ठीक है। देखो जो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो है ना एक्चुअली में क्या है पता है, यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, वन रेक्टेंगल इज देयर एंड वन सर्कल इज देयर। हाउ सर्कल हमें मिलता है यहाँ पे वन सेमी सर्कल प्लस वन सेमी सर्कल, यू विल गेट वन सर्कल। सो यहाँ पे क्या है आपका वन रेक्टेंगल है, हियर वी आर एक्चुअली डीलिंग विद वन रेक्टेंगल एंड वन सर्कल, ठीक है, नॉट टू सेमी सर्कल। टू सेमी सर्कल का मीनिंग क्या है, वन सर्कल ही तो होता है ना, यस। So let's go to the next page. So perimeter of the garden. What we will find? Perimeter of the garden. So perimeter of the garden is equal to perimeter of the rectangular part plus circumference of the circle. मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे एक आपका क्या है? Sorry, यहाँ पे आपका क्या है actually? यहाँ पे आपका एक रेक्टेंगल है एंड यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, एक सर्कल है। सो एक चीज बच्चों देखो यहाँ पे वन थिंग आई जस्ट मिस्टूक, यहाँ पे मेरे से गलती हो गया, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन जो होगा, ये वाला जो आंसर जो है ये थोड़ा मेरा गलत है, ठीक है। आई विल टीच यू, ओके आई विल टीच यू ये कैसे राइट होगा। सो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन क्या होगा पता है, अब इसको बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है, इसको बिल्कुल कट करो, इसको नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ओके। आपको यहाँ पे क्या करना है, बी को इरेज करना है, ओनली 2a रखना है। कैसे होगा मैं बताता हूँ। सो व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब है उसका पूरा जो बाहर का पार्ट है। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो कैसे ऐड होगा, ये वाला पार्ट ऐड होगा, यस नो, ये वाला पार्ट ऐड होगा, यस नो, और यहाँ पे एक सर्कल होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू कि हमें ना इसका जो ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दैट, बिकॉज आपका गार्डन कैसा होगा, आपका गार्डन ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा आपका गार्डन, है ना बच्चों। सॉरी ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया। आपका गार्डन का शेप कैसा है, ऐसा है ना, देखो आपका गार्डन का शेप ऐसा होगा, ऐसा शेप होगा आपका सॉरी, यस। सो यू नीड, आपको जो ये जो अंदर का पार्ट ना नहीं चाहिए, यू डोंट हैव टू दिस वन, आपको यहाँ पे जो है ना अंदर का पार्ट जो है ना वो क्या है, आपको नहीं चाहिए ना। सो व्हाट विल डू, वी विल जस्ट रिमूव दोस थिंग, ठीक है। आपको कौन चाहिए पता है, आपको ओनली ये चाहिए, यहाँ पे एक लेंथ चाहिए, ठीक है, गिव मी सेकंड, व्हाट यू वांट, ये जो ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, और आपको ये ना एक सेमी सर्कल का ये वाला पार्ट और सेमी सर्कल का ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। और ये अंदर का जो लाइन है ना ये आपको नहीं चाहिए, बिकॉज गार्डन में ना ऐसा कुछ भी नहीं है, गार्डन का शेप कैसा है, ऐसा है, तो गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है, ओके। सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओनली कंसीडर दिस वन, आपको ये वाला लेंथ को चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लेंथ है तो यहाँ पे एक लेंथ है, यहाँ पे आपके पास कितना दो लेंथ हो गया। सो दरअसल यहाँ पे क्या हुआ आपका 2 इंटू ए होगा, ठीक है, बी नहीं लिखना है, और ये ए इरेज करो, ठीक है, ये भी इरेज करो, ये इरेज करो, ठीक है। और नाउ यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, दरअसल आपको क्या हो गया है, पूरा कंप्लीट सर्कल का आपका सर्कमफेरेंस देना पड़ेगा। सो 2 इंटू, यहाँ पे देखो मैं चेंज करता हूँ, एक्चुअली मेरा आंसर गलत है, 2 इंटू 13 प्लस, ठीक है, 2 इंटू दिस मच, ये वाला पार्ट नीचे का राइट है, ठीक है। सो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने आर का वैल्यू कितना डाला, 7/2 डाला, बिकॉज यहाँ पे देखो 7 कट होगा। देखो बच्चों आर का वैल्यू मेरे पास दो है, एक है आपका 3.5, दूसरा क्या है आपका 7/2। आपको ना जो भी यूजफुल लगे उसको आप यूज करो। मुझे यहाँ पे 7/2 यूजफुल लगा, मैंने इसको डाला, यहाँ पे देखो 2 कट हो गया, यस।
तो यहाँ पे ओनली कौन बचा, 22 बचा। यहाँ पे कौन बच का पता है, यहाँ पे आपका ये आपका मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, सो ये आपका आंसर कितना होगा, 26 + 22 कितना हो जाएगा आपका, 48 मीटर्स हो जाएगा। सो व्हाट बी द आंसर, द आंसर विल बी 48 मीटर्स। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बिकॉज द पेरीमीटर ऑफ द जो गार्डन है, गार्डन का जो पूरा पेरीमीटर होगा, यहाँ पे ना ये वाला जो पार्ट नहीं आता है। अगर आपका यहाँ पे ब्रेड्थ वाला पार्ट नहीं आता है तो यहाँ पे मैंने जो बी लिखा है ये तो गलत हो जाएगा ना, मेरा आंसर गलत कर देगा। सो दैट्स इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो आंसर कैसे होगा मैंने बता दिया आपको। सो थैंक यू ऑल। एंड इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होमवर्क तो है। ओके, सो आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए। ओके, नहीं हुआ तो मैं करूँगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, आप ट्राई करो करने के लिए। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे। चलो।